Hello everyone, how are you? Hope all of Fine, you are sir. fine. Okay, Gitansh is with Yes. us. So we are starting with our webinar, Google algorithm on Google algorithm, and this is our fourth seminar of Webinar Fresh 2021. So I am sharing screen. Let's start. Over to Gitansh. Gitansh, this webinar is visible. Screen slides is Yes, visible. sir. Yes, sir. Okay, Visible. okay, you can start. All the best. Thank you, sir. So, good afternoon, all of you. My name is Gitansh, and I'm a student of HIDM, as you all know. I'll be presenting today's webinar, which is on Google algorithm. So, this webinar is being conducted under the guidance of Engineer Manmohan Singla, sir, and I'm very thankful to him for giving me this opportunity. So, let's get started with our webinar. So, how many of you have used Google? Almost everybody. Everybody, including me, uses Google very much, which means we use Google for almost averagely 3 to 4 times whenever we have any query. जब भी हमें कोई क्वेरी आती है हम सीधा गूगल पास जाते हैं. तो गूगल ऐसा क्या करता है जो हमारी क्वेरी टाइप होते ही हमें रिजल्ट मिल जाता है फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर. तो वो जो काम होता है रिजल्ट फेच करके लाने का वो क्रॉलर का होता है, लेकिन क्रॉलर को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं एल्गोरिथम्स के थ्रू. आज हम उन्हीं एल्गोरिथम्स के बारे में बात करेंगे. वेबिनार शुरू करने से पहले मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा जिन जिन टॉपिक पर मैं आज बात करूंगा. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस सम फैक्ट्स अबाउट गूगल. Then we'll move to our core topic, Google algorithm, in which we will discuss Google Panda, Penguin, Hummingbird, RankBrain, BERT, and Google product review update. Don't worry, I'll clear all the doubts regarding this updates. Sir, please, next slide. So here are some facts about Google. Google was founded in September 1998. The original name of Google was Backrub. Yes, the Google which we know was originally started as Backrub, which was the first search engine. Later on, its name changed to Google. Talking about its share in global search engine market, it has 92% share of global search engine market, and it has a website index of more than 3 billion. So you can see how popular Google is among us. And now moving to the next slide. So let's start Google algorithm. So I am talking about Google algorithm. What actually is Google algorithm? Google algorithm है क्या? So when we read this, Google search algorithm is a complex system that allows Google to find, rank, and return the most relevant pages for a certain search query. 3 words यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है: फाइंड, रैंक एंड रिटर्न. कोई भी क्वेरी यूजर ने डाली उसे गूगल के क्रॉलर ने फाइंड किया, रैंक किया और रिटर्न किया. ये क्रॉलर के साथ साथ बैकएंड पे एल्गोरिथम्स काम करती हैं जिनकी वजह से ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर पॉसिबल हो सकता है. प्रिसाइजली द होल रैंकिंग सिस्टम ऑफ कंटेन्स consist of multiple algorithms that consider various factors such as quality, relevance or usability of the page. काफी सारे फैक्टर्स ये एल्गोरिथम कंसिडर करती हैं. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट गूगल ने 200 रैंकिंग फैक्टर्स दिए हुए हैं. तो वो सारे फैक्टर्स में से कुछ क्वालिटी, रेलेवेंस और यूजिबिलिटी होते हैं. आइए एक एक करके अब इन एल्गोरिथम्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. पहले गूगल एल्गोरिथम अपडेट्स के बारे में. ब्रॉडली ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है: माइनर अपडेट एंड मेजर अपडेट. माइनर अपडेट, एज द नेम सजेस्ट, नॉट मच चेंजेस आर मेड इन देम. ये गूगल नोटिफाई भी नहीं करता. लेकिन जो मेजर अपडेट्स होती हैं वो कोर चेंजेस होते हैं जो गूगल अपने एल्गोरिथम के अंदर करता है, विच हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट. टुडे आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द मेजर अपडेट्स. लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो सबसे पहले जो गूगल की अपडेट आई थी, मेजर अपडेट, वो आया गूगल पांडा. गूगल पांडा वाज लॉन्च्ड ऑन 24 Feb 2011. इट वाज इनिशियली नॉट अ पार्ट ऑफ गूगल कोर एल्गोरिथम. ये जब लॉन्च हुआ तो एज अ सर्च फिल्टर लॉन्च हुआ था, जो कि गूगल का ऑब्जेक्टिव था. इस अपडेट से गूगल अपने सर्च इंजन का कंटेंट इंप्रूव करेगी ताकि यूजर का सर्च एक्सपीरियंस जो है बेटर हो सके. और जनवरी 2016 में
इस सर्च फिल्टर की तरह लॉन्च हुए एल्गोरिथम को कोर अपडेट में कन्वर्ट कर दिया गया। आगे चलेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब गूगल पांडा किन किन फैक्टर्स के ऊपर काम करता है? वी ऑल नो, मैंने अभी बताया कि गूगल पांडा जो अपडेट है वो गूगल के कंटेंट से रिलेटेड है। तो क्या क्या चीजें हैं जो गूगल पांडा को नहीं पसंद, विच मीन्स कि अगर आपकी वेबसाइट पर ये चीजें हैं तो गूगल पांडा एल्गोरिथम अपडेट आपकी वेबसाइट को डी इंडेक्स कर सकती है या आपकी रैंकिंग काफी ज्यादा नीचे लेकर जा सकती है। लेट्स अंडरस्टैंड। इरेलेवेंट कंटेंट, फर्स्ट जो पांडा को चीज नहीं पसंद आती वो इरेलेवेंट कंटेंट, सेकंड कीवर्ड स्टफिंग, और थर्ड फर्स्ट इरेलेवेंट कंटेंट, सेकंड कीवर्ड स्टफिंग, और थर्ड डुप्लीकेट कंटेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, एक एक करके इन सबको समझते हैं। इरेलेवेंट कंटेंट क्या होता है? इरेलेवेंट कंटेंट वो कंटेंट होता है जिसके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन मांगी ही नहीं, मैं सर्च कुछ और कर रहा हूं और मुझे सर्च कुछ और, रिजल्ट में कुछ और शो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है कि अगर यूजर जो है स्पोर्ट्स शूज की क्वेरी करता है, विच मीन्स या तो उसे स्पोर्ट्स शूज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए या तो वो बाय करना चाह रहा है, लेकिन अगर उसे किसी स्पोर्ट्स न्यूज का लिंक मिलता है तो वो उसके लिए रेलेवेंट नहीं होगा, रेलेवेंसी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर कोई ब्लैक टेक्निक करके वेबसाइट रैंक कराने की कोशिश करेगी अपना कंटेंट इरेलेवेंट कीवर्ड्स पर, तो पांडा विल नॉट लेट दैट हैपन। सो इरेलेवेंट कंटेंट, the content which does not provide the desired information. For example, if a user searches for a query, say sport shoes, and he finds news in the search result, this is called irrelevant content. आगे दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दूसरे पॉइंट में आ जाता है डुप्लीकेट कंटेंट। डुप्लीकेट का मतलब present in two places. Duplicate content is a content which is available on multiple URLs on the web because more than one URL shows the same content. Search engine don't know which URL to list higher in the search result. डुप्लीकेट कंटेंट वो कंटेंट है जो एक ही वेबसाइट पे डिफरेंट यूआरएल्स पे जो है प्रेजेंट है, और सर्च इंजन को ये आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है कि कौन सा एसईआरपी पर लेके जाए। इसके लिए कॉन्सेप्ट आया यूआरएल कॉनिकलाइजेशन, जो सर्च इंजन को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि कौन सा कंटेंट आप एसईआरपी पर दिखाएंगे और कौन सा नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट जो चीज आती है, जो फैक्टर कंसिडर करता है गूगल पांडा, वो है कीवर्ड स्टफिंग। आई थिंक बीइंग अ डिजिटल मार्केटर हम सब ने ये टर्म सुनी हुई है, कीवर्ड स्टफिंग आजकल ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। और कीवर्ड स्टफिंग होता है, इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ लोडिंग अ वेब पेज विद कीवर्ड्स और नंबर्स इन एन अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट अ साइट रैंकिंग इन गूगल सर्च रिजल्ट। जैसे कि ये बता रहा है कि इररेलेवेंट कंटेंट से अपनी वेब पेज को भर देना ताकि वो फॉल्स कीवर्ड्स पर रैंक हो जाए, ये कीवर्ड स्टफिंग होती है। थोड़ी बहुत एक लिमिटेड एक्सटेंट तक कीवर्ड स्टफिंग पॉसिबल है, लेकिन जब आप टोटली रैंकिंग के लिए कीवर्ड स्टफिंग पर ट्राई करेंगे तब पांडा आपकी वेबसाइट को डी इंडेक्स कर देगा। कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट एल्गोरिथम पर चलते हैं। नेक्स्ट जो आती है वो आती है गूगल की पेंगुइन अपडेट। गूगल की पेंगुइन अपडेट आप ये कह सकते हैं कि पांडा का ही एक डेवलप्ड वर्जन है, क्योंकि पांडा जो है कंटेंट से रिलेटेड थी और ये भी कंटेंट से ही रिलेटेड है। बेसिकली ये दो फैक्टर को जो है जज करती है, एक लो क्वालिटी बैकलिंक्स और दूसरा कीवर्ड स्टफिंग। ये लॉन्च हुई थी अप्रैल 24, 2012 को, और लॉन्च होने के बाद 2012 से लेके 2016 तक इसमें 10 चेंजेस आए और 2017 में ये गूगल कोर एल्गोरिथम का पार्ट बन गई। आइए देखते हैं लो क्वालिटी बैकलिंक्स या लिंक स्कीम क्या होता है ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पेंगुइन दो चीजें सिलेक्ट करता है, लिंक स्कीम और कीवर्ड स्टफिंग। अब एक एक करके उन्हें हम समझेंगे कि लिंक स्कीम होता क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। लिंक स्कीम क्या होता है? द डेवलपमेंट, एक्विजिशन और परचेज ऑफ लो क्वालिटी बैकलिंक्स फ्रॉम लो क्वालिटी और अनरिलेटेड वेबसाइट एंड आल्सो स्पैम लिंक। बैकलिंक वो तरीका होता है जिससे हम अपनी वेबसाइट का लिंक किसी हायर डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी वाली वेबसाइट को देते हैं ताकि वहां से यूजर क्लिक कर हमारी वेबसाइट पर आ सके। आजकल ये प्रैक्टिस बहुत चल रही है, लेकिन कई बारी हम लो क्वालिटी और इररेलेवेंट बैकलिंक का यूज करते हैं, कई बारी हम परचेज भी करते हैं बैकलिंक।
तो ये जो पेंगुइन अपडेट है ये आपकी लो क्वालिटी बैकलिंक्स को रिमूव कर देगा। सो इट्स बेटर कि आप इसकी गूगल पेंगुइन को ध्यान में रखकर ही बैकलिंकिंग की प्रैक्टिस करें। आजकल ये बहुत ट्रेंड है, जैसे fiverr.com पर आपको कई सारे फ्रीलांसर मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे इतने डॉलर्स में इतने बैकलिंक्स और ये सब, तो उनके झांसे में प्लीज ना ही आए। नेक्स्ट स्लाइड। स्टफिंग मैं अभी बता के ही हटा हूँ, ये भी कीवर्ड स्टफिंग को चेक कर रहा है। दैट्स व्हाई मैं ये कह रहा था कि जो गूगल पांडा है, गूगल पेंगुइन है, वो पांडा का ही एक एडवांस वर्जन आप इसे कह सकते हैं, बिकॉज इट ऑल्सो चेक्स कीवर्ड स्टफिंग। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप कीवर्ड स्टफिंग करें या कोई भी कीवर्ड स्टफिंग करता है तो ध्यान रखिए कि पांडा और पेंगुइन दोनों आपको चेक कर रहे हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। अगली अपडेट आई गूगल की हमिंग बर्ड। ये लॉन्च हुई 20 अगस्त 2013 को। ये किस लिए लॉन्च हुई थी? इसका फोकस था कि यूजर के इंटेंट को समझा जा सके। नाउ लेट मी क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजर इंटेंट। यूजर इंटेंट ये होता है कि यूजर एक्चुअली सर्च क्या करना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सर्च इन माई गूगल सर्च बॉक्स डिजिटल मार्केटिंग, तो मेरा इंटेंट क्या क्या हो सकता है? मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में सर्च कर सकता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बारे में सर्च कर सकता हूँ, मेरे मन में क्यूरियोसिटी है कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर है क्या, मैं उसके बारे में सर्च कर सकता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग की जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में सर्च कर सकता हूँ। तो कीवर्ड एक, लेकिन इंटेंट काफी सारे। तो इंटेंट को समझने में हेल्प करती है गूगल की हमिंग बर्ड एल्गोरिथम। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, दिस अपडेट फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग द यूजर इंटेंट। कैसे आइडेंटिफाई करती है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो बेसिकली गूगल हमिंग बर्ड के 3 एलिमेंट्स हैं जिसे वो आइडेंटिफाई करती है यूजर का इंटेंट। ये 3 एलिमेंट्स हैं, नॉलेज ग्राफ, सिमेंटिक सर्च और लोकल सर्चेस। नॉलेज ग्राफ, सिमेंटिक सर्च और लोकल सर्चेस। अब हम एक एक करके इनके बारे में समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे करती हैं ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, ये है नॉलेज ग्राफ। जब मैंने अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पर एक क्वेरी की सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई को आप सब जानते हैं, गूगल के सीईओ, तो उनसे रिलेटेड वेब यूआरएल के अलावा मेरे पास एक इन्फो बॉक्स खुल गया जिसमें उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी जो अलग अलग सोर्सेज पर अवेलेबल थी। गूगल ने उन सारी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन उठाकर आपको एक समराइज्ड फॉर्म में दे दी। दिस इज नथिंग बट नॉलेज ग्राफ। आइए, द गूगल नॉलेज ग्राफ, अब हम पढ़ते हैं। द गूगल नॉलेज ग्राफ इज अ नॉलेज बेस used by Google and its services to enhance its search engine result with information gathered from variety of sources। इंफॉर्मेशन को वैरायटी ऑफ सोर्सेज से इकट्ठा कर कर वो आपको सर इन्फो बॉक्स की फॉर्म में रिजल्ट दे देगा। दैट इज नॉलेज ग्राफ। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और अगला एलिमेंट इसका डिस्कस करते हैं। अगला एलिमेंट जो है इसका वो है सिमेंटिक सर्च। सिमेंटिक सर्च का मतलब ये है, अगर मैं कोई क्वेरी सर्च इंजन पे सर्च करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कॉफी सर्च की हुई है, तो मुझे कॉफी सर्च करते ही कॉफी नियर मी, कॉफी बीन्स, कॉफी ब्रांड्स, कॉफी शॉप और ये सारी क्वेरीज दिख रही हैं। मतलब गूगल मुझे सजेशन दे रहा है कि आपका इंटेंट ये हो सकता है कि आप कॉफी ब्रांड्स के बारे में जानना चाहते हो, शॉप्स के बारे में जानना चाहते हो, या लास्ट जो क्वेरी है कॉफी कैसे बनती है इस बारे में भी मैं हो सकता है जानना चाह रहा हूं। सो दिस इज how semantic search works. Let's understand it. Semantic search refers to the ability of search engine to consider the intent and contextual meaning of search phrases when serving content to user on the web. यूजर के इंटेंट को समझने का एफर्ट है जो गूगल सिमेंटिक सर्च के थ्रू करता है। अगला एलिमेंट इस जो कि है नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला एलिमेंट आता है लोकल सर्चेस। लोकल सर्चेस का मतलब मेरी पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर मैं कोई चीज सर्च करूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां सर्च किया कॉफी शॉप्स नियर मी। मेरे इस कीवर्ड से मेरी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है दैट आई वांट टू लुक फॉर कॉफी शॉप्स विच आर लोकेटेड नियर माय लोकेलिटी। गूगल को ये इंटेंट पता चला और गूगल ने मुझे गूगल माय बिजनेस की लिस्टिंग्स दिखानी शुरू कर दी, सो दैट मैं अपनी जो सर्च का इंटेंट है वो पूरी तरह देख पाऊं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगली जो अपडेट आई वो आई गूगल की रैंक ब्रेन।
गूगल की रैंक ब्रेन लॉन्च हुई थी 26 अक्टूबर 2015 को। जब ये लॉन्च हुई तो इसने गूगल की सर्चेस को 15% सर्च रिजल्ट को इम्पैक्ट किया। वैसे तो 15% एक छोटा सा नंबर है, लेकिन हम गूगल सर्च बेस के अकॉर्डिंगली देखें तो 15% सर्चेस मतलब दिस अपडेट हैज अ बिग इम्पैक्ट। लाइक गूगल हमिंग बर्ड एंड दिस एल्गोरिथम अपडेट ऑल्सो फोकस ऑन द यूजर इंटेंट। आइए लेट्स सी कैसे। नेक्स्ट स्लाइड पर। अब रैंक ब्रेन कंसिडर थ्री थिंग्स। यहां मैं एक बात क्लियर करना चाह रहा हूं कि गूगल 200 रैंकिंग फैक्टर्स देता है जिसपे अलग अलग एल्गोरिथम वर्क करती हैं। गूगल कभी भी ये डिस्क्लोज नहीं करता कि कौन सी एल्गोरिथम कौन से फैक्टर पर वर्क करती है, लेकिन सर्चर्स की माने तो उन्हें ये पता चला है कि रैंक ब्रेन जो है मेनली ये तीन चीजें देखती है: ड्वेल टाइम, सीटीआर और बाउंस रेट। आइए एक एक करके इन टर्म को समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। फर्स्टली हम देखेंगे ड्वेल टाइम। Dwell time क्या है? Dwell time is the length of time a person spends looking at a web page after they have clicked on a link on SERP page, but before clicking back to the SERP result. Dwell time वो लेंथ है जो एक यूजर स्पेंड करता है SERP पे एक रिजल्ट आने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, मैंने flipkart.com खोला और मैंने flipkart.com पर 10 मिनट स्पेंड किए, तो दैट इज माई ड्वेल टाइम। फिर मैं बैक कर किसी और वेबसाइट पर चला गया तो ड्वेल टाइम उस वेबसाइट का काउंट होगा। तो ड्वेल टाइम का कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होता है। ड्वेल टाइम के बाद जो अगला फैक्टर आता है वो आता है CTR, दैट इज क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट बेसिकली ये आपकी पेड एडवर्टाइजिंग के अंदर टर्म बहुत यूज होता है। जैसे हम गूगल ऐड कर रहे थे तो भी हमने ये यूज किया था। बेसिकली क्लिक थ्रू रेट इज द रेशियो ऑफ यूजर्स हु क्लिक ऑन ए स्पेसिफिक लिंक टू नंबर ऑफ टोटल यूजर हु व्यू ए पेज। देखिए मेरी एक वेबसाइट है फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की, मैंने कीवर्ड पर रैंक कराई हुई है। कोई भी अगर गूगल सर्च बॉक्स के अंदर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करता है तो मेरी वेबसाइट आ रही है। एक बार एक यूजर ने मान लो 500 बार वो क्वेरी सर्च की और 500 बार मेरी वेबसाइट आई, लेकिन 500 में से 50 यूजर्स ने उस पर क्लिक किया, तो मैं अपना CTR कैलकुलेट करूंगा 50, दैट इज टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स, डिवाइड बाय 500, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशन, इनटू 100 व्हिच गिव्स मी 10%। आई होप CTR क्लियर है। CTR के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है बाउंस रेट। बाउंस रेट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ पीपल who visit your website and switch to another website without taking any action on the website। कोई भी क्वेरी की यूजर को यूआरएल दिखे, यूआरएल पे क्लिक किया, लेकिन किसी वजह से चाहे वो इररेलेवेंसी हो, चाहे वो पुअर यूजर एक्सपीरियंस हो, उसने बिना कोई एक्शन लिए बैक पे क्लिक कर दिया और वो किसी और वेबसाइट पर चला गया, दैट इज बाउंस रेट। तो बाउंस रेट के साथ एक टर्म बहुत यूज की जाती है, दैट इज एग्जिट रेट। लेट मी क्लियर द डिफरेंस फर्स्ट। बाउंस रेट परसेंटेज होती है पीपल की हु विजिट योर वेबसाइट एंड स्विच टू अनदर वेबसाइट विदाउट टेकिंग एनी एक्शन ऑन द वेबसाइट। अब दूसरा सिनेरियो एग्जिट रेट को समझने के लिए, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट पर यूजर आया और मेरी वेबसाइट के उसने बिल्कुल एग्जिट नहीं किया, मेरी वेबसाइट के पेज ए से वो पेज बी पर गया और पेज बी पर जाकर उसने एग्जिट किया। जब वो पेज ए टू बी गया और बी से एग्जिट किया, दैट इज एग्जिट रेट। और जब पेज ए पे ही वो एग्जिट कर देगा, दैट इज बाउंस रेट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमें ये तो पता चल गया कि गूगल की रैंक ब्रेन ड्वेल टाइम को एज अ फैक्टर मानती है। अब ड्वेल टाइम को अच्छा करने के लिए हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहली जो चीज आती है वो राइट अ लॉन्गर कंटेंट। ऑब्वियसली सिंपल मैथ है, एक 50 वर्ड्स के कंटेंट को पढ़ने के लिए यूजर को कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू 500 वर्ड्स। लेकिन दैट डजंट मीन कि आप अपने 500 वर्ड्स के आर्टिकल के चक्कर में आप अपनी रेलेवेंसी को खो देंगे, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करेंगे। आपका कंटेंट एंगेजिंग होना चाहिए और थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि ड्वेल टाइम ज्यादा लगे। दूसरा, मेक योर वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली। मोबाइल फ्रेंडली आप सभी जानते हैं, आज भी मोस्ट ऑफ द पीपल ओपन देयर वेबसाइट्स ऑन मोबाइल रेदर देन डेस्कटॉप और लैपटॉप। मतलब एक मेजर परसेंटेज आज भी मोबाइल्स का यूज करती है वेबसाइट वगैरह खोलने के लिए। तो आपकी वेबसाइट अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगी तो मोबाइल से आने वाला सारा ट्रैफिक खत्म हो जाएगा और ड्वेल टाइम जो है आपका कम रहेगा।
फिर प्रोवाइड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रेलेवेंसी के बिना कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पर नहीं आएगा, आएगा तो वो क्लिक करके वापसी चला जाएगा, दैट मीन्स कि आपका बाउंस रेट वहां बढ़ जाएगा। चौथी बात आती है अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग, ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। पांचवा, मेक ए स्पीडी वेबसाइट। आज के दिन में यूजर इम्पेशेंट है, यूजर वांट एवरीथिंग इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। अगर आपकी वेबसाइट लोड होने में टाइम लेगी तो दैट इज एन हार्मफुल सिग्नल फॉर योर वेबसाइट ट्रैफिक। आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक घटने लग जाएगा अगर आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड स्लो होगी तो। अब ये फैक्टर्स सिर्फ आपका ड्वेल टाइम नहीं इंप्रूव करेंगे, दिस विल ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस बाउंस रेट ऑफ योर वेबसाइट। ऑब्वियसली अगर कंटेंट अच्छा होगा, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होगी तो ड्वेल टाइम बढ़ेगा, बाउंस रेट कम होगा और ये सारी चीजें। नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। अगली जो एल्गोरिथम अपडेट आती है वो आती है गूगल बर्ट। गूगल बर्ट लॉन्च हुई थी अक्टूबर 2019 में। इसका क्या मेन मोटिव था, जब यूजर लॉन्ग टेल कीवर्ड करता है, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सर्च करूं कॉफी कैसे बनाई जाती है, तो आप यहां सब बैठे हैं, मेरा इंटेंट समझ जाएंगे बिकॉज यू नो हिंदी, आपको सब पता है कि मैं क्या रिजल्ट मांग रहा हूं। लेकिन यही अगर कोई यूजर कोई और भाषा में सेम चीज को सर्च करे तो वो अंडरस्टैंड करने में गूगल को प्रॉब्लम होती है, और उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया गूगल की बर्ट एल्गोरिथम ने। बर्ट एल्गोरिथम इज बेसिकली अ लैंग्वेज सिस्टम दैट हेल्प्स गूगल टू नो इट्स लॉन्ग टेल कीवर्ड बेटर। ये आपकी जो 5 लैंग्वेजेस पर करंटली इंपैक्ट करती है, मतलब 5 लैंग्वेजेस को इसने ऑप्टिमाइज किया है बर्ट बर्ट ने। नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। अब हम बर्ट का थोड़ा सा मीनिंग समझेंगे। बर्ट, BERT, बी जिसमें बी स्टैंड करता है बाई डायरेक्शनल के लिए, ई स्टैंड करता है एनकोडर के लिए, आर स्टैंड करता है रिप्रेजेंटेशन के लिए, और टी स्टैंड करता है ट्रांसफॉर्मर के लिए। बाई डायरेक्शनल क्या होता है, देखिए जो गूगल की पहली एल्गोरिथम है वो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब या तो वो लेफ्ट टू राइट पढ़ सकती हैं या तो राइट टू लेफ्ट पढ़ सकती हैं, वो दोनों डायरेक्शन में नहीं पढ़ सकती। सो उसका एक ड्रॉबैक है कि वो क्वेरीज को अच्छी तरह इंटेंट नहीं समझ सकती, जबकि गूगल की बर्ट एल्गोरिथम दोनों डायरेक्शन में पढ़ सकती है, तो वर्ड्स को लेकर वो मीनिंग बना सकती है। एनकोडर, आपने दो वर्ड सुने होंगे, एनकोडर और डिकोडर। एक जो किसी भी चीज को मशीन लैंग्वेज के अंदर एनकोड करता है, दूसरा मशीन लैंग्वेज से नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर डिकोड करता है, तो वो ई एनकोडर का ये है। रिप्रेजेंटेशन, जब हम उस रिजल्ट को सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट इज रिप्रेजेंटेशन। ट्रांसफॉर्मर, जैसे मैंने आपको बताया, एनकोड करके डिकोड करना इज ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बर्ट 6 लैंग्वेजेस पे वर्क करती है, वो 6 लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, पोर्तुगीज, अरेबिक एंड जर्मन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस अपडेट का इंपैक्ट एसईओ पर नहीं पड़ता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई भी आपको ये कहता है कि मैं आपकी वेबसाइट बर्ट एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर दूंगा, दैट मींस ये फ्रॉड है, हो ही नहीं सकता। गूगल ने खुद कहा है कि इसका एसईओ पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ ये गूगल के सर्च इंजन को ही समझाने के लिए अपडेट है। नेक्स्ट स्लाइड। अगली अपडेट जो आई वो आई गूगल की प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, गूगल के प्रोडक्ट रिव्यू से रिलेटेड अपडेट। बीइंग डिजिटल मार्केटर, हम सबने एक लाइन सुनी हुई है, दैट कंटेंट इज द किंग, और कंटेंट को किंग बनाने का ही एफर्ट ये अपडेट करती है गूगल की प्रोडक्ट रिव्यू। 8 अप्रैल 2021 को लॉन्च हुई। इसका मेन फोकस था कि क्वालिटी ऑफ रिव्यू इंप्रूव हो, बोथ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की। ध्यान रखिएगा, नाम में प्रोडक्ट है लेकिन प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए इक्वली एप्लीकेबल है ये अपडेट। गूगल के कोर एल्गोरिथम का पार्ट नहीं है। कोर एल्गोरिथम का पार्ट ना होना मतलब हर एक वेबसाइट को नहीं इंपैक्ट करेगी, सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट, ब्लॉग्स और एफिलिएट वेबसाइट्स को इंपैक्ट करेगी, जो प्रोडक्ट के रिव्यू जिन वेबसाइट्स पर होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसको और डिटेल में समझते हैं।
अब इस अपडेट के बारे में थोड़ी सी हाइलाइट्स। ये अपडेट लॉन्च हुई थी 8 अप्रैल 2021 को, कंप्लीटली लॉन्च नहीं हुई, ये फेजेस में लॉन्च हुई थी और गूगल ने कहा था कि ये 2 वीक्स के अंदर कंप्लीटली रोल आउट हो जाएगी। इसके पीछे मेन लॉजिक जो था वो था कि Google search provide the most accurate and high quality content for user that rely on them to research product and make purchases। हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है हम प्रोडक्ट के रिव्यूज चेक करते हैं, तो प्रोडक्ट के रिव्यूज पर दैट मींस कि एक यूजर प्रोडक्ट बाय करने से पहले काफी ज्यादा डिपेंड होता है। तो गूगल की प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट उसी चीज को और रिफाइन कर हमें हमारे सामने लेती है, सो दैट वी कैन फाइंड अ बेटर प्रोडक्ट विद फुल इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया था कि नेम इसका चाहे गूगल प्रोडक्ट रिव्यू है, लेकिन ये सर्विसेज के केस में भी एप्लीकेबल इक्वली होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमने इसमें बात की एक रिव्यू पे काम करती है, तो गूगल ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि जब हम रिव्यू की बात कर रहे हैं तो हम एक हाई क्वालिटी रिव्यू में आखिर चाहते क्या हैं, व्हाट वी वांट इन अ हाई क्वालिटी रिव्यू। सबसे पहला जो इनका पॉइंट है वो है प्रोवाइड एक्सपर्ट ओपिनियन वेयर एवर रिक्वायर्ड। मतलब आप टेक्निकलिटीज को समझाएंगे जहां आपको जरूरत हो कि एक एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई लैपटॉप परचेज कर रहा हूं तो लैपटॉप का एक रिव्यू किसी टेक एक्सपर्ट के थ्रू भी होना चाहिए, सो दैट मैं अपने डिसीजन में बहुत क्लियर रहूं। दूसरा, मेंशन ऑल द फिजिकल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट इन डिटेल। हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सिर्फ प्रोडक्ट के पैकेज पर लिखी इंफॉर्मेशन देखकर यूजर ये डिसाइड नहीं करेगा ये क्या ये चीज उसके लिए है या नहीं है। और तीसरा है प्रोवाइड द डाटा रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट इन न्यूमेरिकल टर्म्स। अगर मैं किसी लैपटॉप की बात करता हूं तो अगर लैपटॉप के बारे में ये लिखा हुआ है कि द बैटरी बैकअप ऑफ दिस लैपटॉप इज गुड, अब गुड से मैं न्यूमेरिकल टर्म्स में डिसीजन नहीं ले पा रहा कि क्या गुड। अगर मुझे क्लियरली ये मेंशन होगा कि बैटरी बैकअप ऑफ दिस लैपटॉप इज 5 आवर्स, तो मुझे परचेज डिसीजन लेने में और आसानी होगी, तो ये हाई क्वालिटी रिव्यू में आएगा। फिर एक्सप्लेन व्हाट स्टैंड्स अ प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर। एक प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट में कॉम्पिटिटर से क्या अलग है। लैपटॉप तो कई सारे हैं लेकिन मैकबुक में ऐसा क्या अलग है जो बाकी विंडोज लैपटॉप में नहीं है, वो सब। और उसी प्रोडक्ट के प्रीवियस जनरेशन के साथ कंपैरिजन होना चाहिए और की पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं रिव्यू के अंदर जो कि हेल्प करें यूजर को फाइनल डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड से। सो दैट्स ऑल, आई होप आपको क्लियर होगा। ओवर टू मनमोहन सर। ओके, नाइस प्रेजेंटेशन। अभी डाउट सेशन लेते हैं और किसी को कुछ डाउट्स होंगे तो वो डिस्कस करते हैं। पहले क्लैपिंग्स गीतांश के लिए, नाइस प्रेजेंटेशन। तो गीतांश कैसा लग रहा है प्रेजेंटेशन के बाद? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, न्यू एक्सपीरियंस है, मेरा फर्स्ट टाइम है किसी भी वेबिनार का। ओके, तो 2 लाइन में करो, क्या रहा सेमिनार का, कैसे क्या फीडबैक रहेगा आपकी तरफ से? सर एक नई चीज ऐड हुई है आज, एक्सपीरियंस कह सकते हैं, और होने चाहिए सर ये वेबिनार्स। और जब कोई दूसरा प्रेजेंटेशन दे रहा होता है तो लगता है आसान है, जब खुद देते हैं तो पता चलता है। गुड। तो सिमरन मैम मेरे साथ हैं और सिमरन मैम इस बैच में थे, गीतांश को अच्छे से जानते हैं, तो लेट्स हियर फ्रॉम हर कि क्या गीतांश के लिए उनका कहना है और ओवरऑल प्रेजेंटेशन के बारे में। सिमरन मैम। Sir, I'm very happy today, मतलब to see the गीतांश performance ना, I'm very impressive। बहुत अच्छी presentation दी इसने, इसके जो भी doubts होते थे एक एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा सही में। I'm very happy for him। थैंक यू मैम। ठीक है सर, फिर भी कस्टमर को एक्चुअली आइडिया दो। निशांत जी हमारे साथ नहीं है, और कौन है? सचिन जी क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, गीतांश का कॉन्फिडेंस काफी ग्रूम हुआ है और जैसे ये थोड़ा हेजिटेट करता था लेकिन बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हुआ। और मैं मतलब निशांत को मिस कर रहा हूँ क्योंकि निशांत को गीतांश की परफॉर्मेंस दिखानी थी आज, पर निशांत नहीं है। बहुत अच्छा गीतांश, वेरी वेल वेरी वेल।
थैंक यू सर। अंकित जी, हाँ सर, कैसा रहा वेबिनार? बहुत अच्छा था सर, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, शेखर जी। बेटर था सर, मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है बाकियों के वेबिनार हम भी कर लेंगे कुछ। अब हमारा ही है नेक्स्ट, मेरा और अंकित जी का। सही बात है। राजी, बहुत बढ़िया था सर, इट वाज ऑसम। अच्छे तरीके से समझाया था, हर चीज क्लियर की सर ने, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा फीडबैक कोई शेयर करना चाहेगा जिनका सेमिनार शायद हो चुका है, जैसे 2 ही सेमिनार वेबिनार हुए हैं अभी, कि कुछ ऐसा लग रहा हो कि सेमिनार देखने के बाद यस कि वी विल बी एडिंग दिस थिंग और ये अच्छा है हमने छोड़ दिया हो, ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ लर्निंग मिल रही है? यस सर, इसमें एक तो सबसे जो बेस्ट थिंग है वो है कॉन्फिडेंस लेवल, कि आपको अपने आप को रिप्रेजेंट किसी के सामने करना हो तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये एक चीज जो है हम अपने अंदर इंक्लूड कर सकते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है सर, क्लियर एक्सपीरियंस था। आता है। गीतांश का वेबिनार मेरे तरफ से फीडबैक था, क्लियर था, प्रिपेयर्ड था, सबसे बड़ी बात, टर्म्स वाज क्लियर टू हिम, न्यू टर्म्स वर देयर, जो कि सही था, बहुत अच्छे से इसने एक्सप्लेन किया है और लग भी रहा था कि कहीं ना कहीं इसने समझ के जो भी है तैयारी करके प्रिपेयर करके अच्छे से प्रेजेंट किया है। इट वॉज नॉट लाइक कि क्रैमिंग पार्ट लग रहा था कुछ या कुछ, इट वॉज ट्रू। ठीक बात है। यशवंत क्या बोलेगा इस बारे में? यशवंत। सर वही जो आपने भी कहा है कि बिल्कुल एक एक स्लाइड क्लियर की थी इन्होंने, और बिल्कुल क्लियर से समझ आ रहा है सर एक एक बात जो इन्होंने प्रेजेंटेशन दे रखी थी सब कुछ। निशु मैम, आप क्या कहेंगे टॉपिक? सर बहुत बहुत ही अच्छी थी, और इतनी जल्दी जल्दी थी और इतनी अच्छी भी थी, मतलब बहुत स्लो नहीं था, फास्ट था बट बहुत क्लियर था। माधवी मैम। So it was a good seminar delivered by him, and अभी धीरे धीरे हमारी टर्न आने वाली है। We are progressing towards that. अब थोड़ा सा अपनी तरफ से डर लग रहा है, जैसे जैसे बाकी डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, it's fine. But Gitansh sir has given good in a good way. He has gone through the whole topic. It was clear very well.